Bismillahirrahmanirrahim. Finance for technical managers. This is our lecture, which will be basically covering the practice questions of the topics that we covered after the midterm. So this lecture will basically be a revision lecture. ठीक है, जो हमने टॉपिक्स मिड टर्म के बाद इसमें कवर किए हैं, बेसिकली 4 टॉपिक्स हमने मिड टर्म के बाद कवर किए हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हमने कवर किया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर. तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं एंड ऑल ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. We'll cover only as the students suggested that we need to cover the practice questions. So in today's lecture we'll be covering the revising the practice questions related to these topics, starting with the time value of money. Question number 1. In this question is basically related to related to future value of a lump sum. अच्छा, जब आपको एक पेमेंट दी गई हो और आपको ये डिटरमिन करना हो कि जी ये पेमेंट जो है इसका फ्यूचर में एट अ सर्टेन पीरियड इन टाइम हमें कितना रिटर्न हो जाएगा. सो दैट इज सिंगल पेमेंट, और सिंगल पेमेंट को हम लम सम अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर सपोज यू हैव 2000 एंड प्लान टू परचेज अ 3-year सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट पेज 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. हाउ मच विल यू हैव व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैच्योर्स. ठीक है, तो अब आपके पास एक ही पेमेंट थी 2000 की जो आपने डिपॉजिट की, उस पे 4% इंटरेस्ट है और आप ये जानना चाहते हैं कि 3 years के बाद जाके आपके इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कितने पैसे जमा हो चुके हैं. सो फॉर calculating the future value we can use this formula. Future value is equal to present value 1 plus I raised to the power n. The present value is 2000, 1 plus I is the rate of interest. ठीक है, 1 is constant. 1 plus I, क्योंकि यहाँ पे 4% था तो it will be 1.04. n is the number of years, तो इसमें 3 years थे. So by putting these values in this equation we get this answer 2249.73. Okay, so again similar sort of question in which we want to find out the present value. In the first question we were interested in finding out the future value. Here we are given the future value and we want to find out the present value of a lump sum amount. So suppose a US government bond promises to pay 2249.73 3 years from now. If the going interest rate on 3-year government bonds is 4%, how much is the bond worth today? So here we want to find out the present value. We can use this formula. Present value is equal to future value divided by 1 plus I raised to the power n. Future value is 2249.73 divided by 1 is the constant value, I is the rate of interest, so 1 plus I is 1.04, n is the number of years, which is 3 in this case, so ये आपके पास answer 2000. Now moving on to the annuities. Annuities is a series of payment. एक से ज़्यादा payments हैं और equal payment है, तो तब वो annuity बन जाएगी. यानी एक से ज़्यादा payments हैं, series of payments हैं और सब payments equal amount के. जैसे यहाँ इस केस के अंदर अगर आप देखें कि you want to buy a condo 5 years from now and you plan to save 3000 per year beginning 1 year from today. ठीक है, तो 3 years आपने 3000 आपने जमा करना है for 5 years. तो 3000 की 5 payments होंगी. It's a series of payments and now payments are occurring 1 year from today, यानी 1 साल के बाद आपने पेमेंट करनी है, तो ये फिर ऑर्डिनरी एनुइटी हो जाएगी. ठीक है, एनुइटी किसको कहते हैं? जिसमें सीरीज ऑफ पेमेंट्स होंगी और अगर वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो है उसमें पेमेंट स्टार्ट हो रही हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो फिर वो एनुइटी ड्यू होगा. और अगर वो पेमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर तो फिर वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी एनुइटी. तो ये जो केस है दैट इज ऑर्डिनरी एनुइटी. You will deposit the money in an account that pays 6% interest. अब इस पे आपको 6% interest मिल रहा है. How much will you have just after you make the 5th deposit 5 years from now? ठीक है, तो 5 साल के बाद कितने आपके पास पैसे होंगे? इसका मतलब है कि आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुइटी. ठीक है जी, क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे
तो आप पहले डिटरमिन कर लें कि एक पेमेंट है या सीरीज ऑफ पेमेंट्स है। अगर सीरीज ऑफ पेमेंट्स है तो क्या वो पेमेंट स्टार्ट में है या एंड पे है, ठीक है, क्यों, उसकी वजह से आपकी फिर वो एनुटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनुटी का डिफरेंस आ जाएगा। और तीसरी चीज़ ये देखनी होगी कि उसकी वैल्यू आप जो डिटरमिन करना चाह रहे हैं सीरीज ऑफ पेमेंट्स की, क्या वो एट द एंड ऑफ द पीरियड है या वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो फ्यूचर वैल्यू का केस होगा, अगर स्टार्ट ऑफ द पीरियड है तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू का केस होगा। अच्छा जी, अगर अब इस केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी इज द पेमेंट ऑफ एनुटी, जो कि सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, 3000 इस केस में है। One is constant plus I. I is the again the rate of interest, which is 6% here. N is the number of years. So this N here is 5. Minus 1 is constant divided by I again is the rate of interest. तो इस इक्वेशन के अंदर हमने अपनी वैल्यूज जो क्वेश्चन के हिसाब से दी हुई थी, पीएमटी की वैल्यू ये है 3000 है, आई की वैल्यू 6% है और एन 5 है, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट इन की, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी 16,911.28 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एनुटी ड्यू है। रिमेंबर एनुटी ड्यू किसको कहते हैं, जिसमें पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। तो यहाँ पे आप देखें कि सेम क्वेश्चन था, 5 ईयर्स आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं 3000 पर ईयर, बिगिनिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है आज से, तो इसलिए ये जो पहले वाले केस में था बिगिनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे, तो ऑर्डिनरी एनुटी बन गई। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी पेमेंट जो आपकी पेमेंट स्टार्ट हो रही है, इमीडिएटली स्टार्ट हो रही है, तो दैट विल बी कंसिडर एज एनुटी ड्यू। अब इसमें सेम, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आपके पास हाउ मच विल यू हैव 5 ईयर्स फ्रॉम टुडे, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन एनुटी ड्यू के केस में। तो एनुटी ड्यू में और ऑर्डिनरी एनुटी में डिफरेंस ये है कि आपने ये पहला जो पार्ट अगर आप देखें, this one is whole that was the case of ordinary annuity। तो ordinary annuity मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पेमेंट एक्स्ट्रा एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, तो उसके लिए हमने उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एनुटी ड्यू बन गया, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू किस तरह से फाइंड आउट हो सकती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। ये सारी चीज़ जो है दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी, और 1 प्लस आई से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारी वैल्यूज उसी तरह से हमें गिवन है, EMT is 3000, I is 6%, N is 5। इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज हमने पुट इन की एंड वी फाइंड आउट द आंसर। ओके, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, यू कैन ट्राई सॉल्विंग। आप ये अपने खुद से बेशक पॉज कर लें, या आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो इसकी जो है PPT भी होगी, तो आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन खुद पढ़ के और इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरीके से आपने फिगर आउट करना है कि जी कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर आपको लगाना होगा। एनीवे ये तो आपके पास एग्जाम के अंदर जो है फार्मूला शीट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो वो आपको फार्मूले अगर ना भी याद हो, बट इफ़ यू कैन फिगर आउट कि जी फार्मूला कौन सा लगना है, तो आप उस फार्मूला शीट से फार्मूला यूज़ करके इसको डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी एनुटी। ऑर्डिनरी एनुटी होती है जिसमें पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो, और फाइंड आउट क्या करना है, जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So you have a chance to buy an annuity that pays 1000 at the end of each year for 5 years, ठीक है। 1000 की 5 पेमेंट्स हो गई तो एनुटी बन गई, और पेमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। you could earn 6% on your money in other investment with equal risk। what is the most you should pay for the annuity, ठीक है, what is the most you should pay for the annuity, यानी हमें आज पेमेंट करनी है तो हमें कितनी पेमेंट करनी चाहिए, यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको आप देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला PMT 1 minus 1 divided by 1 plus I raised to the power n divided by I। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर PMT 1000 था, I जो है 6% है, N जो है 5 है। सारी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट इन की और ये आपने आंसर निकाल लिया। आप अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खुद इसको इस सारी वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें कि आपका आंसर आता है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यू आर नॉट
कैलकुलेटिंग इट प्रॉपरली, तो आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस करके देख लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, अगेन प्रेजेंट, अच्छा अब ये थोड़ी सी इक्वेशन है, इसको पढ़ेंगे तो हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि जी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। योर फादर इज अबाउट टू रिटायर एंड ही वांट्स टू बाय एन एन्युटी दैट विल प्रोवाइड हिम with 50,000 of income per year for 20 years beginning a year from today. The going rate on such annuities is 6%. How much would it cost him to buy such an annuity today? ठीक है, तो आज हम इस एन्युटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से तो लास्ट सेंटेंस हमें पता चल गया कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ से पता लग गया। दूसरा हमें ये पता लग गया 50,000 ऑफ इनकम पर ईयर फॉर 20 ईयर्स, 50,000 पर ईयर, तो ये कांस्टेंट अमाउंट है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, 20 साल तक ये पेमेंट मिलती रहेगी, तो ये एन्युटी बन गई। और बिगिनिंग अ ईयर फ्रॉम टुडे का मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी बन गया। तो ये सारी इक्वेशन पढ़ के हमें ये समझ आ गई कि इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करनी है। तो सेम थिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया वो हमने अप्लाई करना है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन में दी हुई हैं। EMT 50,000 है, इंटरेस्ट रेट 6% है और N 20 है। तो ये सारी चीज़ें आप इस इक्वेशन में पुट इन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, योर फादर इज अबाउट टू रिटायर एंड ही वांट्स टू बाय एन एन्युटी दैट विल प्रोवाइड विद हिम विद 50,000 ऑफ इनकम अ ईयर फॉर 20 ईयर्स विद द फर्स्ट पेमेंट कमिंग इमीडिएटली। ठीक है, अब अगेन आप इसमें देख लें कि सीरीज ऑफ पेमेंट्स होगी 50,000 ऑफ इनकम अ ईयर फॉर 20 ईयर्स, सीरीज ऑफ इनकम हो गई और पेमेंट कब हो रही है, एट द स्टार्ट कमिंग इमीडिएटली, इसका मतलब है ये एन्युटी ड्यू हो गया। द गोइंग रेट ऑन सच एन्युटीज इज 6%, यानी इंटरेस्ट रेट हो गया। हाउ मच वुड इट कॉस्ट हिम टू बाय द एन्युटी टुडे। तो आज की तारीख में हम देखना चाह रहे हैं सॉरी कि इसकी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लग गया कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, यहाँ तक ये सारा जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। तो एन्युटी ड्यू की वजह से हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 1 प्लस आई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हमने क्वेश्चन से चीज़ें नोट डाउन कर ली कि पीएमटी कितनी हो रही है, 50,000 हो रही है, एन्युटी की पेमेंट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 20 ईयर्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड जो है वो 20 है। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल के वी कैन कैलकुलेट द आंसर। Your father has 500,000 and wants to retire. He expects to live for another 20 years and to be able to earn 8% on his invested funds. How much could he withdraw at the end of each of the next 20 years and end up with zero in the account? अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि जी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है एक अमाउंट की विच इज़ 500,000 है। He expects to live for another 20 years and to be able to earn 8% on his invested funds. Acha, how much could he withdraw at the end of each of next 20 years and end up with zero in the account? अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जी 20 साल तक, यानी ये अगर 500,000 वो इन्वेस्ट कर दें और 8% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करें तो पर ईयर उसको अगेंस्ट वो कितना रिटर्न ले सकते हैं। पर ईयर रिटर्न इज द सेम एंड इट विल बी फॉर 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये एन्युटी बन गया। ठीक है, इस एन्युटी में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन विच इज 500,000, एन इज गिवन विच इज 20, आई इज गिवन विच इज 8%। द ओनली मिसिंग पीस हेयर इज पीएमटी। हमें ये नहीं पता कि यार ये जो अगले 20 साल तक हमें एन्युटी की पेमेंट मिलनी है वो कितनी मिलेगी। यानी अगर ये पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, तो हर अगले इस पे 8% रिटर्न के साथ पर ईयर उनको इस पे कितना मिल सकता है। तो पीएमटी विच इज पर ईयर पेमेंट इज मिसिंग। ठीक है, तो बाय रीडिंग द होल थिंग हमने एक चीज़ फिगर आउट ये की कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, इसलिए कि प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई एन्युटी की, पेमेंट्स आर अकरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट ईयर 20 ईयर्स। एंड ऑफ द ईयर का मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाकर हमने पीएमटी फाइंड आउट करना है।
सो हियर इट इज कि हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाया और इसमें मिसिंग पीस इज पीएमटी, तो वो पीएमटी हमने, बाकी चीज़ें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट इज गिवन और एन नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन। तो वो सारी चीज़ें हमने इस फॉर्मूले में डाली और ये हमारे पास पीएमटी जो अननोन वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अगेन ट्राई सॉल्विंग दिस यूजिंग पेपर एंड पेन, तो आपको इसका थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये पीएमटी की वैल्यू हमने डिटरमिन की। अच्छा, सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, इसमें सिर्फ चेंज क्या आया कि वहाँ पे पेमेंट जो थी वो एट द एंड ऑफ द ईयर थी, यहाँ पे पेमेंट बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, बाकी सारा डाटा सेम है। हमने फिगर आउट कर लिया कि जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का केस है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है हमारे पास, और हमने फाइंड आउट ये करना है कि जी पीएमटी क्या होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो हमने इसमें पुट इन की एंड वी कैलकुलेटेड द टोटल वैल्यू विच इज 47,153.80। अच्छा जी, अब पीछे जितनी भी केसेस थे वो एन्युटीज थी। एन्युटीज में ये है कि सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट है। अगर सीरीज ऑफ पेमेंट है लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं है तो उसको हम कहते हैं अनइवन कैश फ्लो। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस आप ध्यान में रखें कि जिसमें स्ट्रीम ऑफ पेमेंट है और सब पेमेंट्स इक्वल अमाउंट है तो वो एन्युटी बन जाएंगी, और अगर वो पेमेंट स्ट्रीम ऑफ पेमेंट तो है यानी एक से ज़्यादा पेमेंट्स हैं लेकिन वो पेमेंट अनइक्वल है तो फिर वो अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम है। तो अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम का तरीका ये है कि जी आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या आपने उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको हर इंडिविजुअल पेमेंट की वैल्यू डिटरमिन करनी होगी और फिर उसको आप सम अप करके टोटल उस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें करना क्या है। एट अ रेट ऑफ 8% व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम। सो वेरी क्लियरली इट इज डिफाइंड, आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और कैश फ्लो स्ट्रीम क्या है, $0 एट टाइम 0, 100 at the end of year 1, 300 at the end of year 2, 0 at the end of year 3 and 500 at the end of year 4। ठीक है, 4 सालों में पेमेंट्स हो रही हैं और पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही हैं। अब इनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस्ट वे वुड बी कि जी आप इसकी टाइम लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे ये टाइम लाइन ड्रॉ हुई हुई है कि 8% इंटरेस्ट रेट है, टाइम 0 पे हमें $0 मिल रहे हैं, टाइम 1 पे हमें 100, टाइम 2 पे हमें 300, टाइम 3 पे हमें 0 और टाइम 4 पे हमें 500। ठीक है, ये टाइम लाइन बना लिया। अब हमने करना ये कि इनकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो 100 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n, वो जो हमने शुरू में डिटरमिन किया था, यानी एक पेमेंट सिंगल पेमेंट है ना, ये 100 रुपीज़ इज वन सिंगल पेमेंट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लम सम का फॉर्मूला लगाकर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो ये इतनी आनी चाहिए। आप खुद भी करके देख लें, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पी वी इज इक्वल टू एफ वी, ये एफ वी होगा, 100 इज एफ वी, 1 प्लस आई, आई जो है आपके पास 8 है, 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा, और एन इन दिस केस इज 1। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के एंड पे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू 300 है डिवाइडेड बाय 1.08 एंड 1 प्लस आई होगा ना, और रेस टू द पावर एन, एन अब इस केस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप करके देख लें। $0 का तो 0 ही रहेगा, $500 को इसी तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की। अब आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया, ठीक है ना, ये चारों पांचों वैल्यूज जो है इनको ऐड कर लिया तो आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो आ गया। इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू का केस है, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ हमने फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमने अगेन टाइम लाइन बना लिया, ये सेम टाइम लाइन है। अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो जो आपको 500 मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर, अब आप फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं ना, यू आर डिटरमिनिंग फ्यूचर वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हैं कि जी हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे 500 तो 500 ही होगा जो उस दिन आपको मिलेगा, उस पर ऐड तो कुछ नहीं हो रहा ना, कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, ये तो एंड ऑफ द ईयर 4 मिलेगा तो बस ये 500 ही रहेगा। तो इसकी तो फ्यूचर वैल्यू 500 होगी। अब हम पीछे बैकवर्ड चलते हैं, जीरो जीरो रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, एट एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमें क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है। इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रिमेंबर, एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। तो ये हो गया आपका पी वी $300 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 1 प्लस आई इज 1.08, और यहाँ पे n कितना लेना है ये थोड़ा सा आप देख लें। n किस तरह से कैलकुलेट होगा, यहाँ से आपने जाना है यहाँ पे, तो 1 and 2, ठीक है। 2 साल के बाद हमें कितना हो जाएगा, ये जो 300 हमें यहाँ पे आज मिल रहा है, 2 साल के बाद यानी 1 और 2, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 लेनी है, तो ये आप कैलकुलेट कर लें, इट विल बी 350। इस तरह से आप इसको देखें, 100 जो हमें यहाँ पे मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 होगी, मल्टीप्लाई बाय 1.08, n कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, 3 साल के बाद, यानी ये जो हमें 100 अब मिला है, इसकी 3 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपने n रिमेंबर कितना लेना है, 3 लेना है, कैलकुलेट यहाँ से कर लें 1, 2 एंड 3। तो टाइम लाइन से ही मसला आपका आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमें जीरो मिल रहा है वो जीरो ही है, अब इन पांचों को आप ऐड कर लें तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू 975.89 आ जाएगी। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि जी आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जी हमने ये फ्यूचर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हमारा था लोन अमोर्टाइजेशन का। लोन अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप एक लोन ले लिया आपने, अब आपने उसकी मंथली या क्वार्टरली या एनुअल जो भी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाएंगे तो आपका लोन भी कम होता जाएगा और उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस होता जाएगा, और बाय द एंड यू विल पे योर लास्ट इंस्टॉलमेंट, आपका कंप्लीट लोन भी पे हो चुका होगा और आप उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी पे कर चुके होंगे। सो हियर इट इज कि जी अच्छा कैलकुलेट, अब सॉरी इसमें हमने क्वेश्चन के अंदर पहले देख लें क्या है। Suppose you borrowed 25,000 at a rate of 8% and must repay it in 4 equal installments at the end of each of the next 4 years. How large would your payments be? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो ये तो एन्युटी बन गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 पेमेंट्स हैं तो एन्युटी हो गया, और एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट, एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर, ये मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, बोरो हमने किया 25,000, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया, आज पैसे मिल गए हमें, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लार्ज वुड योर पेमेंट्स बी, पीएमटी फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाकर पीएमटी फाइंड आउट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज किया और आपने पीएमटी वाज मिसिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट इज 8%, नंबर ऑफ ईयर इज 4। तो अब ये जब आपने वैल्यूज इसमें प्लग इन की तो यू फाइंड आउट कि जी आपकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी दैट वुड बी 7548.02। ओके जी, सो लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन हियर बिकॉज पीछे जितने क्वेश्चंस थे वो 1 स्टेप वाले थे, ये क्वेश्चन भी है जिसमें 2 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। Your sister turned 30 today and she is planning to save 3,000 per year for retirement with the first deposit to be made 1 year from today. She will invest in a mutual fund which she expects to provide a return of 10% per year. She plans to retire 35 years from today when she turns 65 and she expects to live for 30 years after retirement to age 95. Under these assumptions, how much can she spend in each year after she retires? Her first withdrawal will be made at the end of her first retirement year. ये क्वेश्चन 2 पार्ट में इसलिए हो रहा है कि पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि जी वो अगर 30
30 की एज से स्टार्ट करना शुरू किया उसने सेविंग्स 3000 पर ईयर। कब तक लेके जाना है? 35 ईयर्स फ्रॉम टुडे। यानी 3000 पर ईयर वो सेव करती जा रही है फॉर 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स के बाद ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब देखें 3000 पर ईयर है और डिपॉजिट टू बी मेड 1 ईयर फ्रॉम टुडे। 3000 पर ईयर इसको एन्युटी बना रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको ऑर्डिनरी एन्युटी बना रहा है। तो ये तो आपने इसकी पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करनी है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जब वो 65 पे जाके रिटायर होगी तो उस वक्त उसके पास कितनी अमाउंट आ गई। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अब ये जो अमाउंट उसके पास है अगर ये अमाउंट वो अ, इस अमाउंट के अगेंस्ट पर ईयर उसको कितने यानी इस इतनी जितनी अमाउंट उसको जमा हो गई है 65 की इसकी एज हो गई, नेक्स्ट 30 ईयर्स तक वो कितने पैसे पर ईयर इसमें से ले सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले हमने स्टेप 1 में फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जैसे मैंने आपको बताया था पीएमटी 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था और 35 एंड 35 था। तो ये हमने लगाकर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी यानी जो उसने अपनी 35 ईयर्स में सेविंग की वो इतनी आ गई। अब हमारे पास ये आ गई एट द टाइम एज ऑफ रिटायरमेंट। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट पर ईयर वो कितना विड्रॉ कर सकती है। यानी इसको हम अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कंसिडर कर लें इस वैल्यू को जब उसकी रिटायरमेंट हुई है तब की बात हो रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बन गया, इंटरेस्ट रेट सेम है, नंबर अगले 30 ईयर्स तक उसने जिंदा रहना है जो कि वो प्लान कर रही है। जिंदा रहना तो वो तो जो उसकी प्लानिंग है उसके हिसाब से। तो पीएमटी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाकर ये सारी वैल्यूज हमने पुट इन की और वी फाइंड आउट द पीएमटी विच इज 86,250। ठीक है, तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एक दफ़ा फिर आप खुद इस क्वेश्चन को रीड करें, थोड़ी सी उसकी सेंस समझने की कोशिश करें एंड देन यू शुड लुक एट दिस सॉल्यूशन। आई होप कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन ये था जिसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, ये भी ज़रा इसको आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो समझ हो जाएगा कि किस तरह से हमने किया है। आफ्टर ग्रेजुएशन यू प्लान टू वर्क फॉर मेगा कॉर्पोरेशन फॉर 10 years and then start your own business. You expect to save 5,000 a year for the first 5 years and 10,000 annually for the following 5 years, with the first deposit being made a year from today. The first 10,000 will be deposited at the end of year 5. In addition, your grandfather just gave you a 20,000 graduation gift, which you will deposit immediately. If the account earns 8% compounded annually, how much will you have when you start your business 10 years from now? चलें जी, अब ये इसमें क्या हो गया जी कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स ऑफ पेमेंट्स हो गई। एक एन्युटी वो है जो 5 ईयर्स अ ईयर फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स है। ठीक है ना, 5 साल तक आप 5,000 पर ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। तो एक तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की यानी 5,000 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। दूसरा 10,000 हो गया, ये अगेन ये भी आप 5 साल तक सेव करेंगे और इसका भी पहला डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर होगा, ये भी ऑर्डिनरी एन्युटी बन गया। इसकी अलग से फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तीसरी चीज़ 10,000 जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सॉरी जो खैर ये 10,000 वाली दूसरी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपको 20,000 का गिफ्ट मिला है वो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसकी यानी ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ लम सम आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, इस पे 8% इंटरेस्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ऑन सोल्यूशन आप इसका देख लें किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने कहा कि जी गिफ्ट से स्टार्ट कर दिया कि जी 20,000 गिफ्ट था, तो 10 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ लम सम अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू विच इज 20,000, 1 प्लस आई इज 8, तो 1.08 रेज पावर 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरा फर्स्ट एन्युटी थी 5,000, 5 साल उसने डिपॉजिट किया, तो 5 साल के बाद हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी आ गया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाकर आपने ये
ये अमाउंट कैलकुलेट करनी है। आप खुद इसको वर्किंग करके देख लेंगे जी, 5000 पर ईयर अगर वो डिपॉजिट कर रहा है तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब वो ये अमाउंट भी विड्रॉ तो नहीं कर रहा ना, सो दिस अगेन विल बी कंपाउंडेड, यानी 5 साल के बाद ये जो अमाउंट आपने जमा की थी वो कितनी हो जाएगी। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू लें और फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम का फॉर्मूला लगाकर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज 10,000 आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं फॉर 5 ईयर्स, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी आ जाएगी, ऑर्डिनरी एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का फॉर्मूला लगाना है और पीएमटी आप 10,000 कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। खुद से आप ये तीनों वर्किंग करके देख लें, आपकी वैल्यूज यही आ रही हैं, तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट यू विल गेट। Okay, your company has just taken out a 1 year installment loan for 100,000. Monthly payments on the loan will be 8978 due at the end of each month. What percentage of the third monthly payment will go toward the repayment of principal? अच्छा, अब इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है जहाँ पे एक्सक्यूज मी amortization की बात है, यानी सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप लोन पे कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जा रही है और इंटरेस्ट, जैसे इसमें आप देखना चाह रहे हैं कि जी थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने कितना, जो हमने पेमेंट की थी 8978 की, उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कम हो गया और कितना हमने उसमें इंटरेस्ट के हवाले से पे किया है। तो उसके लिए आपको ये अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इसका फॉर्मेट देख लें कि अमोर्टाइजेशन टेबल बेसिकली कितना है जी, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 कॉलम टेबल। ठीक है, कॉलम 1 में ईयर्स आ गए, कॉलम 2 में बिगिनिंग बैलेंस आ गया, कॉलम 3 में जो आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं या जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, मंथली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। इस केस में मंथली है तो वो आपने मंथली पेमेंट लिख दी। अब इसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की। वो कैसे कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। इस वैल्यू के ऊपर जो आपका बिगिनिंग बैलेंस है इस पे 1.17% इंटरेस्ट है, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, टोटल पेमेंट, ये जो प्रिंसिपल बेसिकली ये क्या है, ये पेमेंट हमारी जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रही है, यानी टोटल पेमेंट जो हम इंस्टॉलमेंट की कर रहे हैं वो 8978 है, इसमें ये इंटरेस्ट शामिल है और ये उसमें प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल की अमाउंट कैसे निकल आएगी, इस 8978 में से ये इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा, अब एंडिंग बैलेंस कितना हो गया जी, देखें 100,000 हमारा बैलेंस था लोन का, ये हमने लोन लिया था, इसमें ये हमने पे कर दिया 7812, तो 100,000 में से 7812 माइनस कर दें तो 92187 आ जाएगा। अब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया, बिगिनिंग बैलेंस बन गया, इसके ऊपर हमने 1.17% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, वो ये आ गया। ये अमाउंट कांस्टेंट है ना, ये अमाउंट चेंज नहीं होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाएगी क्योंकि वो इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। प्रिंसिपल आ जाएगा अमाउंट किस तरह से, पेमेंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करें तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और एंडिंग बैलेंस किस तरह आएगा, जो आपका बिगिनिंग बैलेंस था उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो एंडिंग बैलेंस आएगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जी आप टेबल बनाइए वाला और एक एक करके वैल्यूज खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ये अमाउंट रिमेंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है या जो भी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। इंटरेस्ट की हमेशा वैल्यू कैलकुलेट होगी इसके ऊपर जो आपका बिगिनिंग बैलेंस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ होगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपने ये इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर ली। ये जो है प्रिंसिपल, यानी ये कितना, दिस इज द रिडक्शन इन प्रिंसिपल, एक्चुअली इसको आप ये ध्यान में रखें, रिडक्शन कितनी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कम उसमें कमी आती जा रही है। और ये एंडिंग बैलेंस जो कि बिगिनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल को माइनस करके आएगा। तो अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि थर्ड पेमेंट हमने जो की है 8978 की, उसमें से हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी। तो 8978 पे हमारा इंटरेस्ट ये आया, 8978 में से ये इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे तो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी।
This is the answer, 7995.75. अच्छा, क्वेश्चन वो पूछ रहा है जी व्हाट परसेंटेज इज पेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो 7995.75 डिवाइडेड बाय 8978 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा कि जी ये जो हमने 8978 पे किया था उसका 89% जो था वो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट था। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर और फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो आपका मिड टर्म के बाद कवर किया हमने वो हमने कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, और उसके अंदर हमने कवर किया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है जी, तो ये कैपिटल बजटिंग के हवाले से जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हमने कवर की। सॉरी, दिस इज आई थिंक wrong question. We want to see the practice questions. I don't have the lecture for the practice questions. Let's see again. Practice questions. Okay, let's stop here. Let me find the practice questions for capital budgeting and then I will go over them.